The second experimental result you found that the maximum kinetic energy of photoelectrons related to the frequency of the incident radiation. Here you follow the light or any electromagnetic radiation on a metallic surface and there is emission of electrons. And you know that light consists of the particles or it's having energy E is equal to hf, where h is a Planck constant. Like in your previous topics you discuss number of the constants, like you discuss about the Coulomb constant K, you discuss about the gravitational constant capital G, along with you discuss number of other constants. And here h is also a Planck constant and f is the frequency of the radiation. So the energy of radiation is equal to h into f. H is constant and f is the frequency of the radiation. So experimental you found it the maximum kinetic energy of the photoelectrons which is emitted from a surface depend upon the frequency of the radiation. Even if you follow the dim light of the higher frequency, there is emission of the photoelectrons. Clear? But classically that if you use the intense light of any frequency, there is emission of the electrons, there is emission of the charges. But experimentally you found that if you use the high frequency light, but even you take its intensity very small, then there is emission of the electrons. So the maximum kinetic energy of the electrons depend upon the frequency. It's not depend upon the intensity of the light. Even if you use the dim light, you can emit the electrons from a metallic surface if you use the high frequency radiations. Along with you also found that for a given metal there is threshold frequency which is denoted as f naught, and if the frequency is less than the threshold frequency then no electrons is emitted from a metal surface whatever the intensity of radiation is. ठीक है, आपके पास कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी है हर मेटल के लिए. लेट्स आपके पास एल्यूमिनियम है, कॉपर है या आपके पास जिंक, आप कोई भी मेटल यूज़ करते हो तो हर मेटल के लिए जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे भी लो फ्रीक्वेंसी पे उस मटेरियल से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट नहीं होते. आपके पास जितनी मर्जी आप ब्राइटर लाइट यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इस वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं होगी. ठीक है, तो आपके पास इंटेंसिटी भी डिपेंड नहीं कर रही. जो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन है या उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट्स डिपेंड अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. मिनिमम जब किसी भी गिवन मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है उसको आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब आपके पास क्लासिकली जो है फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन या उसकी जो आपके पास एनर्जी जो है उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है. जस्ट देयर इज रिलेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द काइनेटिक intensity of the light and kinetic energy of the electrons. So classical theory failed to explain this experiment that you call the photoelectric effect. अब आपने लास्ट वाले जो चैप्टर है उसमें आपने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था कि आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनमें आपके पास एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, नंबर ऑफ रेडिएशन, विजिबल लाइट आपने डिस्कस की थी. उनमें हर एक में आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा था. ठीक है, अब हर जो मेटल है उसके लिए आपके पास एक गिवन फ्रीक्वेंसी पे आपने देखा होगा डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन वेव्स को जनरेट किया था. अब हर गिवन मेटल के लिए कोई भी आप मेटल लेते हो उसके लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आप फॉल करोगे तो उस पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी. ठीक है, लाइट्स आपके पास हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम पे अगर आप यूज़ करते हो यहाँ पे रेड लाइट, यू नो डेट रेड का और आपके पास ग्रीन लाइट दोनों का आपके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. रेड की फ्रीक्वेंसी और ग्रीन की डिफरेंट है. अगर यहाँ पे इस वाले के लिए आपके पास रेड वाले से अगर एमिशन हो रही है तो वहाँ पे आप इसके बजाय रेड यू नोट के विजिबल में लाई करते हैं. ठीक है, उसके अलावा आप किसी और यूज़ करते हो, रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और इंटेंसिटी की रेडिएशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, सॉरी किसी और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यूज़ कर रहे हो तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं होगी. अगर ये आपके पास विजिबल की किसी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो रही है तो उससे लो फ्रीक्वेंसी वाला आप अगर यूज़ करते हो तो उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं होगी. आप उसकी इंटेंसिटी को जितनी मर्जी ब्राइटर रेडिएशन यूज़ कर लो, जब तक फ्रीक्वेंसी जो है एक स्पेसिफिक लिमिट को अप्रोच नहीं करेगी, जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जिसके इलेक्ट्रॉन्स किसी गिवन मेटल से एमिट आउट होगा उसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो, एफ नॉट उसको नोट करते हो. तो उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की आप जितनी भी रेडिएशन यूज़ कर लो, विजिबल की आपके पास रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है इट्स लेस देन दी
विजिबल, अगर लेट से आपके पास कॉपर है, इसमें आप विजिबल की कोई भी स्लाइड यूज़ करके आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मिट आउट कर सकते हो, तो रेडियो वेव्स के लिए आपके पास यहाँ पे एमिशन नहीं होगी। या फिर उससे कम वाली रेंज की आप कोई भी यूज़ करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली यू फाउंड डेट electrons are emitted from a metal surface at a given frequency. The smallest frequency you call the threshold frequency, and it's not depend upon the kinetic energy of the electrons, not depend upon the intensity of the light. Either you use the dim light or brighter light, but if you use the right frequency, right, then there is emission of the electrons, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करके सर्टन काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएंगे। तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो है जिससे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स से बाहर आते हैं, अगर आप डायरेक्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी जो आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल है उसकी लाइट फॉल करते हो, यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होगी, वो बाइंडिंग फोर्स से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इक्वल टू F0 है तो आपके बाइंडिंग फोर्स से तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी मोशन नहीं होगी, दे नॉट हैव दी काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप वहाँ से फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग फोर्स से बाहर भी आएंगे, और लॉन्ग फिर उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो मूव करके मेटल सर्फेस से बाहर आ सकें। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस और एंड नॉट डिपेंड अपॉन दी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। यहाँ से एमिट आउट होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं फ्रॉम वन मेटल प्लेट टू अनदर मेटल प्लेट, यहाँ पे आपने पॉजिटिव अप्लाई किया तो यहाँ से टूवर्ड्स पॉजिटिव ज़्यादा उनकी अट्रैक्शन होगी, बट मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बस डिपेंड करती है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, वो आपके पास वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगी। जब बाहर आ जाएंगे फिर मे भी वोल्टेज को अफेक्ट करेगा, जैसे कि हमने पिछले उसमें डिस्कस किया। लेकिन मेटल सरफेस पे बाहर लाने के लिए आपके पास ये वोल्टेज जो है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को स्प्रेड कर रहे हैं ना, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए बाइंडिंग फोर्स को पहले ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के साथ मेटल सर्फेस से बाहर आना पड़ेगा। तो मेटल सर्फेस से बाहर आने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट आप फॉल करते हो, जस्ट इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग फोर्स से बाहर आता है, मूव नहीं करता। अगर उससे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करके मेटल सरफेस से बाहर आते हैं और मूव करते हैं इनसाइड अ करंट, इनसाइड अ सर्किट एंड फॉर्म दी फोटो करंट, एंड दिस एमीटर शो दी डिफ्लेक्शन। एंड क्लासिकली देर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द relation between the frequency of the radiation and emission of the electrons or kinetic energy of the electrons from the metallic surface. Just the kinetic energy depend upon the intensity of the light by classical laws.